سے ہم خدا کی آواز کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 23 آیت نمبر 34 میں یسوع نے یہ کہا، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ پاک نام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکے۔ آمین، ہاللیلویا۔ آج ہم نے خدا کی کلام میں سے پہلا کلمہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 23 آیت نمبر 34 سے سنا ہے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع جب صلیب پر تھا تو یسوع نے وہاں پر بھی خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو اور اس محبت کو ہم پر ظاہر کیا جس کا منصوبہ بنی آدم سے خدا نے بنایا۔ اگر موسیٰ کی شریعت کے میں دیکھیں تو موسیٰ کی شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ آمین۔ لیکن یسوع نے انجیل میں کہا کہ اگر کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ تعلیم دی۔ جب شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع نے دعائے ربانی میں کیا کہا تھا کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ یسوع نے معافی کی تعلیم دی۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اپنے خطاؤں سے، غلطیوں سے معاف کریں، بلکہ یسوع نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کریں۔ اور لوکا کی انجیل میں جب یسوع صلیب پر ہے اور اس نے یروشلم کی گلیوں میں صلیب کو اٹھایا، کلام میں لکھا ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ یروشلم کی گلیوں میں گرا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے اور اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا، اس کے گھٹنے کو چاک کیا گیا، اس سے گالیاں دی گئی، اسے ذلیل کیا گیا، لیکن پھر بھی یسوع کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اگر ہم اسے اس طرح بھی دیکھیں تو یسوع صلیب پر بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کس سے؟ باپ سے۔ وہ باپ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اگر وہ اس سے دعا کرتا تو ان پر غضب بھی آ سکتا، لیکن کلام کے مطابق وہ نبوتیں اور وہ سارا کلام جو اس کے حق میں لکھا گیا تھا اسے اس نے پورا کرنا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گتسمنی کے باغ میں جب یسوع دعا کر رہا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی مانند خون بن کر گر رہا تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ باپ سے کیا، باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ آمین۔ اسی لیے یسوع نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا بھی کی ہے باپ سے۔ اس کلمہ میں اگر ہم دیکھیں کہ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اگر کوئی غصہ ہوتا ہے تو ہم بھی آگے سے غصہ ہوتے ہیں۔ اگر گلی محلے میں دیکھیں تو اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف غصے سے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہے، لیکن یسوع نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی۔ یسوع نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک حکم دیا، جس طرح خدا کا بندہ موسیٰ جسے خدا نے شریعت کی کتاب دی، 10 احکامات دیے، اسی طرح
उन 10 अहकामात को आज भी हम मानते हैं, उन पर ईमान है। इसी तरह यीशु ने शागिर्दों को एक नया हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। हालेलुया। एक औरत थी और उसका एक ही इकलौता बेटा था, और वो बेटा जो था वो हमेशा अपनी माँ को क्या करता था? तंग करता था। उसका बाप मसीह में सो चुका था, लेकिन बेटा हमेशा माँ को तंग करता था। उसके परस से पैसे ले जाता, बुरे काम करता, रात को घर लेट आता। एक दिन उसने खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को सुना, तो उसने यीशु को कबूल कर लिया। उसकी माँ टीचर थी और उसने अपने सारे जो गुनाह थे उस वाइट बोर्ड पर लिख दिए कि माँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। और जब रात को वापस आया तो वो सोच रहा था कि मैं अपनी माँ की नजरों में जो है वो गिर जाऊंगा। लेकिन जैसे वो घर आया तो उसने सबसे पहली नजर जो थी वो व्हाइट बोर्ड पर लगाई, और जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसके सारे के सारे जो गुनाह थे, सारे पाप जो थे, जो उसने किए थे, उसने उन्हें मिटा दिया। इसी तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह जो सलीब पर था, उसने सलीब पर हम सब के गुनाहों को माफ कर दिया। और जब वो मरने के करीब था तो उसने वहां पर कहा, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आज इस कलमा से हमें एक दूसरे को माफ भी करना है, ना सिर्फ माफ करना है बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ भी करनी है। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मसीह में बुजुर्ग आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरी बड़ी मोहब्बत की है जो तू इंसान से रखता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु, जब तू सलीब पर था तो देख खुदावंद तूने वहां पर भी एक अजीब काम किया। जब खुदावंद तेरे पूरे बदन में दर्द, तेरे हाथों और पाँव में कील लगाई, पसली पर नेज़ा लगाया, सर पर कांटों का ताज रखा, तो देख खुदावंद तूने हमें एक बड़ी मिसाल दी, और तूने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, और तूने उनके लिए दुआ की, क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। देख खुदावंद तो हमें तौफीक दे ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें, ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें, ताकि हम एक दूसरे को माफ कर सकें। ऐ खुदावंद हम दुआ करते दिल की शक्ति, हर तरह का खुदावंद क्रोध हमारे दिलों से जाता रहे, और हम ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को करते रहें। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। आइए इसी तरह दूसरा एक कलमा के लिए मैं दावत दूंगा भाई बाबर को, वो आएंगे और खुदा के कलाम में से हमें दूसरा कलमा जो है वो हमारे साथ बयान करें। हालेलुया। खुदा के खादम ने पहले कलमे को हमारे साथ शेयर किया, और पहला कलमा हमारा मोहब्बत का है। खुदा हमसे माफ़ करता है। इसी तरह हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खुदा के कलाम में से खोलेंगे लूका की इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 43 आयत। कितने बच्चे पढ़ते हैं और किनके पास कलाम नहीं है? जिनके पास कलाम नहीं है वो पढ़ते हैं, अपने हाथों को आसमान पर उठाएं, हाथों को खड़ा करें। जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है और वो पढ़ सकते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं, वो स्कूल में जाते हैं और खुदा के कलाम को वो अपने साथ नहीं लेकर आते, वो अपने हाथों को ऊपर करें। ये खुदा का कलाम जिंदगी का कलाम है। और खुदा के कलाम में लिखा है, तेईसवें बाब में से उसकी 43 आयत में से हम पढ़ेंगे
اور میں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے یہاں پر عاشر بھائی کو بلاؤں گا، وہ کلام کو بائبل مقدس کو بائبل کو یہاں سے لے لیں۔ ہاللویہ۔ عاشر بھائی یہاں پر کھڑے میرے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، کلمے کو پیش کرنے کے 23واں باب اس کی 43 آیت یہ میں پڑھتا ہوں، آگے میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ اس نے اس سے کہا، غور سے سنیں، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ یسوع نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یسوع مسیح کو جب اس پر ہماری خاطر سیاست ہوئی اور سپاہیوں نے اسے مارا، اس کے کاندھوں پر سولی، بھاری سولی رکھی گئی، اس پر سیاست ہوئی، اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا، جب وہ عدالتوں میں پیش ہوا تو اس سے کہا گیا کہ میں اس میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اس وقت کے لوگوں نے بڑی آواز سے کہا کہ اسے صلیب دو۔ اس کو جسمانی طور پر کمزور کیا گیا، اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے، اور جب وقت آیا کہ اسے صلیب دیں تو وہ ٹوٹ چکا تھا جسمانی طور پر، وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ روحانی طور پر بڑی قدرت رکھتا تھا۔ اور اس کی قدرت کو ہم اس بات سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ یسوع بڑی قدرت والا یہ لفظ یوز کر رہے ہیں جب وہ ڈاکو، اور متی کی انجیل میں سے ہم دیکھیں گے بھائی، اس آیت کو ہمارے ساتھ پڑھیں گے، متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 44 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ایک ہی ڈاکو خداوند کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے؟ خدا کی روح نے وہاں پر کام کرنا تھا اور خدا کی قدرت کو اس جگہ پر استعمال ہونا تھا۔ اس بات کو ہم بھائی کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مسلوط ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اسی طرح ڈاکو بھی اس کے ساتھ سولی پر اسے لعن طعن کر رہے تھے۔ وقت تھا ایک، خدا کے کلام میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ڈاکو ایک وقت میں اسے کہہ رہے تھے، جو بھی الفاظ یوز کر رہے تھے وہ بڑے سخت تھے، لیکن خدا کے روح نے اس جگہ پر جب کام کیا، خدا کی قدرت کو اس جگہ پر جب استعمال ہونا تھا، تو خدا کے روح نے ایک ڈاکو کے ذریعے اس بات کو ظاہر کیا۔ ہم اسی لوکا کی انجیل میں سے اوپر دیکھتے ہیں، 40 آیت کو ہم بھائی کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ مگر دوسرے نے اسے جکڑ کر جواب دیا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اس نے اسے جھڑکا۔ جب خدا کے روح نے اس ڈاکو سے کام لینا تھا، اس نے اس کی الفاظوں کو دیکھے کہ اس نے کہا، اسے جھڑکا
اور اس سے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ جس گناہ میں ہم ہیں، جس دکھ میں ہم ہیں، اسی میں وہ مبتلا ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ اور ہماری اصلاح تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ہماری سزا تو واجب ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ جی پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ہمیں یہ اس کے بڑے اسٹرانگ الفاظ تھے۔ اس نے یسوع سے فریاد کی اور خدا نے اس جسمانی کمزوری میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور اس نے اس سے کہا کہ آج بھی تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین، ہاللویا۔ آئے ہم خداوند کا شکر کریں گے کہ جو خدا قدرت والا خدا ہے وہ جسمانی طور پر تو کمزور ہوا لیکن روحانی طور پر وہ مضبوط رہا، اور اس نے اپنی قدرت کو، وہ جو مردوں کو اس جہان میں زندہ کرتا ہے، وہ جو اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا، اور وہ صلیب پر ایک ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کی قدرت کو جو وہ معاف کرنے پر قادر ہے، اس نے اس ڈاکو کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی قدرت کو جو لا تبدیل ہے، جو کمزوری میں پوری ہوتی ہے، اس کی قدرت کو اپنی زندگی پر مانگیں اور خدا سے کہیں گے کہ خداوند تو ہماری خطاؤں کو دیکھتا ہے، ہمارے گناہوں کو تو دیکھتا ہے، تیری آنکھ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ ہم جو جسم میں کمزور ہیں لیکن خداوند تو زور آور خدا ہے، تو ہمیں معاف کرنے پر قادر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تو اپنی قدرت کو اسی طرح ہم پر ہمیشہ ظاہر کرتا رہتا ہے، اور تو ہمیں معاف کرتا ہے، تو معاف کرنے پر قادر ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں گنجی ہے۔ یہ سب کچھ خداوند ہم تیرے فتح مند اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، ایک آواز میں کہیں گے آمین، ہاللویا۔ تھینک یو جیسس، ہاللویا۔ پہلے کلمے میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے معاف بھی کیا، اور دوسرے کلمہ میں یسوع کے ساتھ دو گناہگار ڈاکو تھے، اور ایک جو تھا وہ یسوع پر ایمان لے آیا اور دوسرا ایمان نہیں لایا۔ جو ایمان لایا اس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ یسوع جو تھا وہ صلیب پر تھا، تو کس طرح ڈاکو جو تھا وہ فردوس میں یا خدا کی بادشاہت میں جا سکتا ہے؟ لیکن جب یسوع انسان تھا، یہ زمین پر قابل لمٹڈ تھا، لیکن جیسے اس نے کلام میں لکھا ہے کہ جان دی تو وہ لامحدود خدا بن گیا۔ ایک ہی وقت پر وہ آسمان پر بھی تھا اور زمین پر بھی۔ آئیے میں تیسرے کلمہ کے لیے دعوت دوں گا، خدا کے خادم پاسٹر اسلم صاحب آئیں گے اور تیسرے کلمے کو ہمارے ساتھ بیان کریں گے۔ ہاللویا۔ بچوں آرام سے بیٹھو۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب بھائیوں کو سلامتی ہو۔ آئے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے آج تیسرا کلمہ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے محبت کا۔ تو میرے ساتھ حوالہ نکالیں، یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 26 آیت سے۔
آیت پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے. اسی وقت سے وہ شاگرد سے اپنے گھر لے گیا. کلام کا پڑھا سنا جا رہا سب کے لیے بات سے. میرے عزیزو، آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا، تو یہ محبت کا کلمہ ہے. اور جو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا صلیب پر. تو میرے عزیزو، جب یسوع مسیح نے اپنی ماں کو دیکھا کہ کھڑی ہے اور ماں نے بھی یسوع مسیح کو دیکھا، وہ ماں جس نے یسوع مسیح کو جنم دیا. تو میرے عزیزو، وہ ماں پر اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب اس کا بیٹا صلیب پر جان دے رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہوگا تو جب اس کو پانی پلاتی ہوگی، لیکن اس کی ماں کے دل میں اتنا محبت کہ وہ پانی بھی نہیں پلا سکتی تھی. لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ اپنی جان دے کر. اور یہ بڑی ایک ذمہ داری تھی جو یسوع مسیح نے اپنے شاگرد پر سونپی. اگر گھر کا کوئی بھی بڑا سربراہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پر چھوڑ کے جاؤں. تو اسی طرح یسوع مسیح نے بھی، یسوع مسیح کو پتا تھا کہ مجھے اب صلیب دی گئی ہے اور میں باپ کے پاس چلا جاؤں گا. تو میرے عزیزو، اس سے پہلے وہ اپنی جو گھر کی ذمہ داری تھی وہ کس پر چھوڑ دی؟ اپنے شاگرد پر. جو یوحنا اس کا شاگرد تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بھی صلیب کے نزدیک کھڑا دیکھ رہا تھا. تو میرے عزیزو، اس پر یہ ذمہ داری یسوع مسیح نے سونپ دی. اور ماں کو بھی کہا کہ اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے. اور شاگرد کو بھی کہا کہ یہ تیری ماں ہے. تو میرے عزیزو، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو یسوع مسیح نے چاہا کہ اب میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تو اسی لیے وہ ذمہ داری کیا کی کہ اپنے شاگرد پر چھوڑ دی. تو میرے عزیزو، یہ خدا کی یسوع مسیح کی محبت تھی. اور یہ محبت کا کلمہ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر سب کے ساتھ کی. ہاللیلویا. اور خدا کا کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھا. اور جب یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، یسوع مسیح آپ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. تو ہم نے اس کلام پر عمل کرنا ہے اور یقین کرنا ہے. اکثر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یسوع مسیح جب انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح ہر جگہ پر ہر آیت میں کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. تو میرے عزیزو، یسوع مسیح سچ بولتا ہے، ہم نے اس کا یقین کرنا ہے. اور میرے عزیزو،
ये खुदा की मोहब्बत थी जो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की मोहब्बत है और यीशु मसीह की वो मोहब्बत है जो आप लोगों पर जाहिर की उसने अपना जान देकर, फिदिया देकर, खून बहाकर। हालेलुया। तो जिस तरह खुदा ने हमारे साथ, यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत की है, हमें भी उसके साथ मोहब्बत रखनी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये था तीसरा कलमा और ये बड़े खूबसूरत यीशु मसीह ने अल्फाज सलीब पर अपनी मुबारक ज़ुबान से कहा कि ऐ औरत, ये तेरा बेटा है। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो क्या थी कि शिगिर्द पर डाल दी और खुदा का कलाम कहता है कि वो अपने घर ले गया। हालेलुया। तो आज के कलाम की वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस शबर के खालिक और मालिक है सदा सुमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे कलामात के लिए। खुदावंदा, ऐ प्यार से भरी खुदावंदा, जितनी जिंदगी में सुना तो खुदावंद की जिंदगी में जड़ पकड़े और बहुत सारा भाग आए, तब्दीली का बायस बने, बरकत का बायस बने। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। चौथा कलमा हमने सुना है, तीसरा। और यीशु की शरीर के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम कलकवास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शगीर को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शगीर से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीर उसे अपने घर ले गया। आमीन। तो यीशु को सलीब पर भी इस कलमा में जिस तरह खुदा के कानून बता रहे थे, उसे अपनी माँ से मोहब्बत थी और इसी मोहब्बत में उसने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे अच्छे और वफादार शगीर्द यूहन्ना पर डाली। यूहन्ना जो था, ये शगीर्दों में सबसे छोटा शगीर्द था और ये वही रसूल था जो यीशु मसीह के सीने पर सर रख कर बैठता था और ये शगीर्दों में सबसे उम्र का छोटा था और सारे शगीर्द जो थे बाकी रसूल को भाग गए थे, लेकिन ये यीशु के पीछे पीछे चलता रहा यहाँ तक कि वो यीशु की सलीब के पास खड़ा रहा। इसी वजह से यीशु ने इसे अपनी माँ की जिम्मेदारी दी और इसमें हमने यीशु की अपनी माँ से मोहब्बत को देखा है। अभी मैं दावत दूंगा, चौथा कलमा हम सुनेंगे मिसेस पास्टर शफीक से, वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम में से चौथा कलमा जो है हमारे साथ बयान करेंगे। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमने बहुत खूबसूरती से यीशु मसीह के बात पर गौर कर रहे हैं जो हमने सलीब पर बोली। ये बहुत मुश्किल है कि इतनी दर्दनाक ज़ियत दुख भरी हालत में किसी के लिए किसको याद रखना या किसी के लिए माफ़ी की दरख्वास्त करना। मैं सोचती हूँ कि अगर इस जगह पर मैं होती हूँ या मुझे कोई दुख हो तो बहुत कम मैं किसी को याद करूँगी या किसी का ख्याल रखूँगी कि मैं इसके लिए ये करूँगी। लेकिन ये यीशु ने हमें बहुत अच्छा नमूना दिया है कि हमें मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है और अपने क्या करना चाहिए, दूसरों से मोहब्बत का इजहार करना है और अपने माँ बाप, अपने अजीज़ों जो हमारे करीब है उनका भी ख्याल रखना है। तो अभी जो मैं आपके साथ कलमा शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ निकाले मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 26वीं आयत। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इसमें यूँ लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी,
यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कैसी बात है। हम देखते हैं कि दुनिया में जब मुसीबत आती है तो दोस्त छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। बहुत कम जो लोग हैं वो सच्ची मोहब्बत दिखाते हैं। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है कि खुदावंद यीशु मसीह जब मुसीबत में थे, दुख में थे, उनके ऊपर पूरी दुनिया का बोझ था, गुनाहों का बोझ था, तो उस वक्त उसके बाप ने उसको छोड़ दिया। लेकिन इनका छोड़ना, इस बाप को छोड़ना एक फर्क तरीके से है। दुनिया तो मतलब नहीं छोड़ देती है कि जब मुसीबत आई तो दूर भाग के भाग गए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ा। खुदा यीशु मसीह के 7 कलमात में से 3 ऐसे कलमात हैं जो उसने खिताब किया है, और पहला और आखिरी कलमात जो है वो उसने बाप कहकर पुकारा है। लेकिन चौथे कलमे में उसने कहा आए खुदा, ठीक है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो उसने अपने रिश्ते को बाप के साथ नहीं जाहिर किया कि मेरा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ कैसा रिश्ता है। उसने अपने आप को एक, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाप और बेटे का रिश्ता जाहिर नहीं हो रहा, यहाँ पे एक मुसन्निफ और मुजरम का रिश्ता जाहिर हो रहा है। खुदा बाप जो है वो अदालत पर बैठे हैं, अदालत करने के तख्त पर बैठे हुए हैं, और खुदा यीशु मसीह जो वो मुजरिम के तौर पर उसके आगे खड़े हैं। वो क्यों मुजरिम बन गए? सिर्फ हमारे गुनाहों की खातिर, ताकि हम नजात पाए। हालांकि हम देखें कि क्या यीशु मसीह को नहीं था पता कि वो दुनिया में क्यों आए? उनको नहीं पता कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। जब यीशु मसीह, हम देखते हैं पुराने अहदनामे में इसका हर जगह पर इसकी पेशन गोई की गई है कि हमारे लिए एक निजात दहिंदा आएगा। हम जानते हैं तो यीशु मसीह तो बहुत पहले से, जब ये दुनिया बनी भी नहीं थी तब से वो जानता था कि मैंने इस दुनिया की जो भी बनी भी नहीं है, जब भी वो झूठ में भी नहीं आई, इसके लिए मैंने जान देना है। तो जब मेरे ऊपर पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ होगा तो मेरा बाप मुझसे मुंह मोड़ लेगा, क्योंकि खुदा पाकर वो बदी को नहीं देख सकता, उसकी आंख बिल्कुल भी बदी को नहीं देख सकती, उसके ऊपर तो पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ था। तो खुदा ने अपना मुंह से घेर लिया है। खुदा यीशु मसीह तो अपने फर्ज को पूरा कर रहे थे, उसको जिस फर्ज के लिए खुदा बाप ने उसको दुनिया में भेजा वो अपने फर्ज को पूरा कर रहे थे। लेकिन खुदा बाप जो आसमान से देख रहे थे कि मेरे बेटे के ऊपर कितना बोझ है, वो किस तरह से लानती मौत गवारा कर रहा है, वो बेगुनाह है, वो बेअहद है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उसने नहीं किया, सिर्फ किसके लिए? हमारी खातिर। और हम देखें कि जब हमारी खातिर उसने ये लानती मौत गवारा की है, जब उसने अपने बेटे को, यानी कि उसने अपने बेटे को ये नहीं कहा, तरफदारी नहीं की अपने बेटे की, तो चलो मैं अपने बेटे के लिए कुछ रिश्तों को भेज दूँ, तो थोड़ी सी उसकी तकलीफ को कम कर दे। लोगों ने कौन सा रिश्तों को देखना है, लोगों को कौन सा रिश्ते नजर आएंगे, चलो थोड़े से रिश्तों को भेज दूँ कि मेरे बेटे की थोड़ी सी हेल्प कर दे, उसकी इस मुसीबत में उसका साथ दे। नहीं, उसने जो खुदा बाप ने मनसूबा बनाया होता, उसने बिल्कुल भी तरफदारी नहीं की। अगर वो अपने बेटे की तरफदारी नहीं करता तो वो हमारी कैसे तरफदारी करेगा? अगर हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएंगे तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने तो हमारी खातिर जान दे दी है, उसने तो अपना फर्ज पूरा किया है, उसने तो अपने बाप की जुदाई को भी बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन अब हमारा क्या काम बनता है? हमारा ये फर्ज है कि अगर उसने बाप की जुदाई बर्दाश्त की है तो क्या हम गुनाह को छोड़कर खुदा की तरफ नहीं आ सकते?
कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर हमें कोई कहे कि तुमने आज मर जाना है, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, हम क्या कहेंगे? हमें अपने बच्चे नजर आएंगे, मरियम को कह रही, उनका आने वाला मुस्तकबिल नजर आएगा, अपने माँ बाप नजर आएंगे, अपने रिश्तेदार के दोस्त नजर आएंगे, हमारा दिल नहीं करेगा उनको छोड़ के जाने। हम भी यही कहेंगे, खुदावन काश तुम्हें थोड़ी लंबी उम्र और काट दे, मैं अपने बच्चे को खिला सकता, इन्हें खुशियाँ दे सकता। हम तो अपने बच्चों की सोच रहे हैं, हम तो अपने माँ बाप की सोच रहे हैं, तो वो खुदावन जिसे पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाना है, हमारे लिए कुफारा देना है, तो वो क्यों कर ये उसके मुँह से अल्फाज नहीं निकलेंगे कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। बेशक वो जानता है कि ये प्याला नहीं टल सकता, ये पिए बगैर नहीं मैं जा सकता, मुझे इसको पीना ही है। तो फिर भी उसने खुदा से कहा कि बाप अगर हो सके, थोड़ा सा उसने खुदा से कहा अगर हो सके। उसको पता है कि जब तक, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने नबी आए, नबी पैगंबर आए, उसने तौबा की मुनादी की, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, खुदा के बारे में बताया, गुनाह के बारे में बताया, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नबियों की बातों को नहीं सुना, उन्होंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। हम पाकिस्तान की कहानी देखते बाइबल कदर में कि जब एक मालिक ने पाकिस्तान लगाया तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर फल लेके आओ, तो उन्होंने जब क्या किया, नौकरों ने उनको मारा कूटा और उनको भगा दिया। फिर उसने अपने बेटे को भेजा कि शायद ही मेरे बेटे का लिहाज रखें, कि शायद मेरे बेटे का थोड़ा सा ख्याल कर ले कि अब तो मालिक का बेटा है, हमें डरना चाहिए। लेकिन हमने तो बेटे का भी उसके नौकरों से ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। यीशु मसीह को इसलिए दुनिया में भेजा कि चलो ये मेरे बेटे को देखकर उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को उससे भी ज़्यादा नागवार मौत दी, जो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है, लानती मौत। उस वक्त सलीब उन लोगों को दी जाती थी जो गुनाहगार होते थे, जो गुनाह करते थे, जो कत्ल करते थे, तो उनको ये सजा दी जाती थी कि अब इनको की लानती मौत है। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर उस लानती मौत को हमारे लिए हमेशा की जिंदगी बना दिया। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और हमारी खातिर जान देना, ये सबसे बड़ा काम है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर हम आज दुनिया में देखें कि हमारा कोई भाई किसी जुर्म में पकड़ा जाएगा तो उसका भाई उसकी खातिर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया है। उसके बाप ने इसको छोड़ दिया क्योंकि यीशु गुनाह को नहीं दे सकता था। खुदा बाप ने इसको छोड़ा इसलिए कि यूदा अक्सर युक्ति जो उसको बेच डाले, वो इसलिए छोड़ा गया कि उसका मजाक उड़ाया जाए, वो इसलिए छोड़ा गया कि उसके मुंह पर थूका जाएगा, वो इसलिए छोड़ा गया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, वो इसलिए छोड़ा गया कि वो राज़बाज था और वो मुजरिम ठहराया जाए, वो इसलिए छोड़ा गया कि उसको कोड़े मारे जाएं, उसके सर पे कांट का ताज रखा जाए और उसको लानती मौत दी जाए। क्या आप सब सोचते हैं कि यीशु मसीह इस तमाम चीज़ों का हकदार था? ये सब चीज़ें तो हमारे लिए थी, हमने लानती मौत दोबारा करनी थी, हमारा मजाक उड़ाया जाना था, हमारे मुंह पे थूका जाया जाना था, लेकिन ये सब कुछ यीशु ने बर्दाश्त किया। उसने कहा, हम देखते हैं कि जब उसको इतना जुल्म किया जा रहा था, उसने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु की जब जुदाई होगी बाप से, वो उस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यीशु जानता था कि जब मेरे कंधों के ऊपर पूरी दुनिया का बोझ होगा, जब मुझे मारा जा होगा, तो मेरा बाप
मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं उसी वक्त मैला हो गया हूँ, मैं गुनाह से भर चुका हूँ। सर से लेके पाँव तक उसकी जिस्म जो था वो खून से, हमारे गुनाहों से लथपथ था। फिर भी उसने कहा है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो खुदा से पूछ रहा है। अगर आज हमें कुछ छोड़ता है तो हम कहते ठीक है छाड़ दे करते छड़ी जाती मतलब चेनी आकर भेजो तो होती आता। उसने हमें सुलह का पैगाम दिया है, तो हमें भी माफ़ करना है और खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल करना है, अपने आप को खुदा के स्पोर्ट कर देना है, ताकि खुदा जो वो हमारे साथ रहे। उसने जुदाई हमारे लिए बर्दाश्त की ताकि हमारा खुदा के साथ मिलाप हो जाए। ठीक है, अगर हम आज उस मिलाप को फिर पीछे ही छोड़े जा रहे हैं तो उसका सलीब पर इतना कुछ करना बेकार है। वो बार बार हमारे लिए जान देने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। अब उसने आना है तो हमारा इंसाफ करने के लिए आना है। अब वो हमारे लिए हलीम बन कर नहीं आएगा। अब वो तो बार बार हमारे लिए कोड़े नहीं खाएगा, सर पे कांटों का ताज नहीं उसके सर पे रखा जाएगा। अब वो घोड़े पर आएगा और क्या करेगा, हमारा इंसाफ करेगा। अपने अच्छे को उसके दाने को भी साइड पे कर देगा, बुरे दानों को आग लगा देगा। इसलिए सोच लें कि हमने इस तरफ जाना है। हमें हमारी बातों को यीशु ने रास्ता सीधा कर दी है। जब गुनाह तो यीशु ने तो हमारे धो दिए। अब हमारा काम है कि हमने उस सीधे रास्ते पर जाना है या टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलते जाना है। तो अपनी जिंदगी में हमें गौर करना है कि हम किस तरह की जिंदगी चल रही है। खुदा यीशु ने हमारे खातिर इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तो हमें यीशु की खातिर क्या बर्दाश्त करना है, कौन से दुख हमें यीशु की खातिर सहने हैं, कहाँ पे हमें यीशु मसीह का साथ देना है। ठीक है, तो ज़रूर है कि जब आखिरी वक्त आए तो हम यीशु मसीह के साथ जाने वाले बने और उसके साथ बैठने वाले बने। खुदा हम सबको कबूल कर रही है। आमीन, हालेलुया। हमने वही खूबसूरती से चौथा कलमा पेश किया है। कलाम लिखा है कि उस वक्त पूरे मुल्क पर अंधेरा छा गया। क्यों छा गया? क्योंकि उस वक्त दुनिया की सारी जो गतियाँ और गुनाह थी वो हमारे खुदावंद पर यीशु पर डाल दी। और कलाम में मुकाशमा में लिखा है कि उसकी आँख बंद नहीं सकती। इसी वजह से पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। तो अभी हम 5वां कलमा सुनेंगे ताकि खादिम पास्टर शफीक साहब सामने आएंगे और रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट के दरमियान अपना जो भी कलमा है वो वायदा करेंगे। इसके बाद हमने दिनाला के लिए भी जाना है, वहाँ की आज गुड फ्राइडे की बात है। खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में और सबको सलाम। हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मसीह में मेरे अजीजों, ये 5वां कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के इस अल्फाज को यूनानी जुबान के अल्फाज में देखें उस जगह पर, तो एक ही लफ्ज़ है जो यीशु ने कहा है, डिप्सो। डिप्सो जिसका तर्जुमा ये हुआ है, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी वाक़यात पर गौर करने से पता चलता है कि उसकी तकलीफ और अज़ियत का आगाज़ तो उसी वक्त हो गया था जब वो फसा खाने के बाद उस तैयारी के दिन, उससे अगले दिन एक खास सब्त का दिन था। उस दिन को
गतसमनी बाग की तरफ रवाना हुआ। तो उसी वक्त जब वो गतसमनी बाग में बाप से दुआ कर रहा था तो उसका पसीना, खून की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर गिरता था। तो ये जिस्मानी खुद का कलमा इस बात की पेशिन गोई को पूरा करते हुए इज़हार कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर कामिल इंसान भी है और बतौर कामिल खुदा भी। तारीख के अगर हम हिस्सों पर नज़र डालें तो हमारी मजहबी रहनुमाओं की मजलिस जो आला बड़े स्कॉलर को इब्तदाई दौर में उनको एक लफ्ज़ में थोड़ा सा हिला दिया, उनको थोड़ा सा महसूस नहीं हुआ कि हम क्या है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस की पुराने आदनामे की किताबों पर गौर करें, आबाद की किताब उसके 23वें बाब पर गौर करें, वहाँ पर ईदों के बारे में और 2 किस्म के और शब्दों के बारे में पता चलता है। बहुत से गैर मुस्लिम लोग ये सवाल उठाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो खुदा नहीं है, या बहुत सारे बुत परस्त लोग हिंदुओं का ये कहना है कि वो तो इंसान नहीं था, वो तो खुदा की तरफ से एक ऐसे रूह थी जो सिर्फ नजर आता था, महसूस होती थी, वो खुदा का कोई फरिश्ता था, वो इंसान नहीं था। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ तरह के सवाल इस कलमे में इसी बात को साबित किया गया है कि वो बतौर कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी। ऐसा है कि तारीख में जब हम गौर करते हैं तो बुध के रोज तैयारी का वक्त था और उससे अगले दिन फसह के ईद का त्यौहार था, जिसको भी सबत के तौर पर, सालाना सबत के तौर पर माना जाता था। और ये 3 तरह के सबत थे। एक सबत वो जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन को मुक़द्दस ठहराया। एक सबत वो जो हम आबाद की किताब उसके 23वें बाब में पढ़ते हैं कि साल के पहले महीने की पहले फलों की ईद के त्यौहार से एक खास दिन मनाया जाता था, इसको सबत भी कहा जाता था। और फिर एक वो कफारे के दिन का दिन है, त्यौहार है, जिसको भी सालाना सबत कहा जाता था। 6 दिन के बाद आने वाला सबत आम सबत था, लेकिन ये 2 सबत पुराने अहदनामे में खास थे जो साल के बाद आते थे। और बाज़ बात ये आम त्यौहार के सबत के साथ उनमें से कोई सबत इकट्ठा आ गया। तो यीशु मसीह की मसरूबियत के दौर में भी ऐसा हुआ कि बुध के रोज़ तैयारी का दिन था और तैयारी के दिन के बाद अगले दिन जुमेरात को खास सबत का दिन था, कफारा का दिन। और बुध के रोज़ ही खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। और जाकिर नाइक ने भी इस पर अंजीर अरबा को स्टडी करते हुए गलत फहमी का शिकार होते हुए ये नुक्ता उठाया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिन रात मुर्दों में से जी उठूंगा। तो लेकिन उसकी कम इल्म की वजह से, उसकी कम तहकीक की वजह से उसको इस बात की समझ नहीं आई। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, जब उसने कहा जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे, जब उसने कहा कि यूना नबी के सिवा कोई और निशान ना दिया जाएगा कि वो 3 दिन और रात जैसे यूना नबी मछली के पेट में रहा वो भी जमीन के नीचे रहे,
اور مسیح میں میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے یہ تجسم کی مضبوطی کے لیے یہ 5واں کلمہ ہے اور اس کو کامل انسان اور کامل خدا کے طور پر پیش کرتا ہے. بہت سارے ثبوت ہیں اور ایسا ہوا کہ یہ تیاری کا دن تھا بدھ کا روز, تو انہوں نے جلدی کی. یوسف ارمتیہ نے کہا کہ یسوع کی لاش کو لے کر جلدی سے اس کو کفن دفن کیا جائے, کیونکہ اگلے دن سبت ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ خداوند کی جو باڈی ہے, ڈیڈ باڈی, وہ لاش جو ہے وہ سلیب پر سبت کے دن سارا دن لٹکی ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس کو جلدی سے کفن دفن مکمل کر لیا جائے, کیونکہ شریعت کے مطابق سبت کے دن, چاہے عام سبت چاہے خاص سبت, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے جلدی کی. 6 بجے سے پہلے انہوں نے دفنا دیا. 6 بجے کے بعد ان کا دن شروع ہوتا ہے. اور ایسا ہوا جمعرات کے دن یہ فریسیوں نے, فقی فریسیوں نے, ان لوگوں نے, حکمرانوں نے جلدی کی اور متی کی انجیل کے 27ویں باب کی 42ویں آیت میں شاید لکھا ہے, وہاں پر شاید یہی ورس ہے, وہاں پر لکھا کہ انہوں نے جا کر حکمرانوں سے گزارش کی کہ اس نے کہا تھا, وہ خداوند یسوع مسیح کی شاید 62 آیت ہے, 27ویں باب کی متی 62 آیت ہے. انہوں نے جا کر پلاطس سے کہا, سردار کہانوں اور فریسیوں نے یسوع کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, ہمیں یاد ہے کہ اس نے اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا. انہوں نے ریکویسٹ کی اور قبر پر پہرا بھی لگا اور جمعرات کے دن پہرا بھی لگا دیا گیا. اور جمعرات کا دن, پھر اس کے بعد جمعرات کے بعد آگے پھر اگلا دن جو جمعے کا دن وہ ایک خاص دن بنتا ہے, اس میں بھی انتظار کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ ہفتے کا دن جو آتا ہے وہ پھر سبت کا دن ہے. اس دن بھی انتظار ہوا اور سبت کے دن وہ کچھ نہیں کیا. وہ قبر پر جب سبت کے بعد ہفتے کا دن آیا, یعنی جس کو ہم اتوار کا دن کہتے ہیں, سبت کا دن ہفتے کا دن ہے, ہمارا سبت کا دن جو 6 دن کے بعد آتا ہے. تو ہفتے کے دن متی 28ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ سبت کے بعد, ہفتے کے دن کے بعد جو ہفتے کا پہلا دن ہمارا اتوار کا دن ہے, اس روز مریم مگدلینی اور دوسری مریم چند عورتیں قبر کی طرف دوڑی اور انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح جمعرات کا دن, جمعہ کا دن, ہفتہ کا دن, جمعرات کی رات, جمعے کی رات اور ہفتے کی رات مقدس. اس دونوں سبتوں کے دوران خداوند یسوع مسیح 3 دن اور 3 رات کے بعد جی اٹھا اور اس نے ذکر نائک اور دیگر بہت سارے ایسے غلط افواہیں اٹھانے والے اور اس وقت کے فقی فریسیوں کو بھی خداوند نے شرمندہ کر دیا اور وہ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ واقعی بائبل بیان کرتی ہے وہی حقیقی طور پر کامل انسان اور کامل خدا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو کلیسیا جو خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے, آج بھی اس صورت میں ہمارا خداوند یسوع مسیح پکار کر کہتا ہے میں پیاسا ہوں, ڈپسو میں پیاسا ہوں. آج کلیسیا کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کا بدن, جو کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے, وہ کسی کی محبت کا پیاسا ہے, وہ کسی کے ترس کا پیاسا ہے, وہ کسی کے ساتھ ملنساری کا پیاسا ہے, وہ کسی کے ساتھ کسی طرح کی پیاس رکھتا ہے. آئے ہم چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, سوچیں, غور کریں کہ آج خداوند یسوع مسیح کو جو پیاس ہے ہم اس کی پیاس کو کس طرح بجھا سکتے ہیں. سوالیہ انداز میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں
कि खुदावंद यीशु मसीह कामल इंसान होते हुए आज कलीसिया में भी वो जिंदा है और हमारे दरमियान चलता फिरता है, और वो जिंदा है और उसको कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता। आए मेरे अजीजों, सोचे, गौर करें, और आज यीशु हमारी जिंदगियों का प्यासा है, हमारी जिंदगियों की रोतनी हलीमी आजिज़ी इंकिसारी का प्यासा है। आए हम उसके हुजूर अपने आप को पानी की मानद को ढेर दें ताकि वो उसकी इस प्यास को हम बुझा सकें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहते नहीं ना थकना वाले ना थकना। हालेलुया। 2021 साल पहले हमारे खुदावंद यीशु मसीह कई घंटे सलीब पर रहे, और कोई भी अगर हम में से कोई शख्स प्रैक्टिस करे ऐसे अपने दोनों बाजुओं पर रखे तो कम से कम 10 या 15 मिनट हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो कई घंटे सलीब पर रहा। तो हमें भी चाहिए जब हम उसकी उस मोहब्बत को जो उसने सलीब पर हमसे दिखाई, तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है। आमीन। कितने लोगों ने इन कलमात से बरकत पाई है? आमीन। अभी मैं दावत दूंगा भाई चांद से, वो सामने आएंगे और हमारे साथ खुदा के कलाम में से छठा कलमा जो यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया वो हमारे साथ बयान करेंगे। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं भाई साहब का, उनकी पूरी टीम का, इस चर्च का, चर्च की कलीसिया का, और सबसे पहले अपने खुदा बाप का, जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ जो है ये कलमे को शेयर करूं और उसके कलाम को बयान करूं। आप सबके लिए मैं जो है खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा इस कलीसिया को इसी तरह बरकत से नवाजे, और आप हमेशा जलते कोयले, पंजाबी से जो कोड़े कहते हैं, कोड़े जलते रहें ते रोशनी भी देते रहें ते हरारत भी देते रहें, ते अगर उन्होंने अलग कर दिया जाए तो कुछ चलते हैं। बस यीशु मसीह से इस तरह टाइम करना। आइए ऐसे अपने शरण झुकाइए, तो खुदा को दुआ करिए कि उसके बाद फिर मैं कलमा शेयर करांगा। ऐ मेरे खुदा जो कौमों, उम्मतों और कबीलों का खुदा है, मेरे खुदा मैं अपनी गर्दन तेरे सामने झुकाता हूँ कि तेरे हाथ की कारीगरी हूँ। मेरे खुदावंद इस सारी कलीसिया को, इस सारे पंडाल को मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ कि तूने आज का दिन मुझे बख्शा है कि मैं तेरे कदमों में आकर खुदावंद खुदा तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करूँ। मेरे खुदावंद तेरा कलाम जो हड्डियों और दूधों में से गुजर जाता है, और तेरा कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, आज एक एक जान, एक एक जिस्म, एक एक रूह जो यहाँ बैठी है, मेरे खुदा तुझको बरकत दे। मेरे खुदा ये कलीसिया इसी तरह तुझ में परवान चढ़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे खुदा जिस तरह तूने जो मौका बख्शा है, इसी तरह तू मेरी मेहरबानी करना, अपने पाक रूह को खुदा भेजना, ताकि खुदा मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मेरी मिन्नतें दुआएं सुन और कबूल कर, यीशु के पाक और पवित्र नाम से, आमीन। सब तो पहले थी कलीसिया, थके थे नहीं, जिंदा लोगों की निशानी है कि हमेशा जिंदगी का इजहार करते हैं। मेरे नाम मिलके फतेहमंदी का नारा मारो, हालेलुया। आवाज करता है। मैं ड्यूटी करके आया, मैं ड्यूटी को सीधा इतने आया, थक के आया कि वास्ते मेरी घटनी चाहिए। फतेहमंदी का नारा मारे यीशु मसीह ने 6 घंटे सलीब ते लटकन तो बाद फतेहमंदी का नारा मारे, जरा मैं हुण बयान करना है। इसी तरह जबरदस्त नारा मारो, हालेलुया, हालेलुया। जिंदा कौम की निशानी। आइए अब हम टाइम की भी कमी है, आइए हम अब अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे दिया गया है, जो कलमा मुझे दिया गया है। ये छठा कलमा है जिसे कफारे का कलमा भी कहते हैं और निजात के काम को पूरा करने का कलमा भी कहते हैं। ठीक है जी, ये कफारा का कलमा है। जिस तरह पास्टर बयान कर रहे थे कि कफारा जो दिया जाता था, उम्मत इस्राइल में ये कानून था कि वो साल में एक दफा पूरी उम्मत के लिए कफारा दिया जाता था, जिसमें एक बर्रा ज़बह किया जाता था, और उस बर्रे के खून को जो है वो अहद के संदूक पर, जो उस वक्त का सरदार कायम होता था, हारून के घराने से होता था, वो वहां पर जाकर उसको छिड़का करता था। तो अब हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका जो है 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत, खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में यूं मरहूम है
जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। ये कलमा कुफारा का कलमा है। यीशु मसीह जानने की हालत में 6 घंटे सलीब पर लटके रहने के बाद फतेहमंदी का नारा अपनी जुबान मुबारक को जुम्बश देते हुए ये फरमाते हैं कि तमाम हुआ। और वो काम जो बाप ने इज्जत से उनके सपुर्द किया हुआ था, जो वो बर्रा जब वो बपतिस्मा लेने यूहन्ना के पास आते हैं तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तू मेरे पास आया है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि हमें इसी तरह तुम्हारी रास्तबाजी पूरी करनी है। और यूहन्ना ने दूसरों की तरफ देख के कहा कि ये जहान, ये बर्रा है जो जहान के गुनाहों को, मेरे साथ रहिए, कलाम पढ़े है ना, तो क्या लिखा है कि ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वही बर्रा है। और जिस तरह भाई साहब कह रहे थे कुफारा का दिन था, ये वाकई कुफारा का दिन था। और उस कुफारा के दिन पूरी उम्मत के लिए बर्रा कुर्बान किया जाना था। सरदार गाहिन उस बर्रे को लेकर वहां पर मौजूद था और टाइम जैसे ही होने वाला था उसने अपनी कमर कस ली थी। उस बर्रे को ज़िबा करने के लिए तमाम तर आलात, तमाम तर चीजें वहां पर रख ली गई थी। और उस बर्रे को ज़िबा करके वो खून जो है वो ऐद के संदूक पर छिड़का जाना था। लेकिन मत्ती की इंजील अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब उसने आवाज़े बुलंद चिल्ला कर कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ये कहकर जान दे दी। उसी वक्त बहुत बड़ा भूचाल और ज़लज़ला आया जिसकी वजह से वो सरदार कायन उस बर्रे को ज़िबा ना कर सका, बल्कि वो बर्रा वहां से उठकर भाग कर चला गया। और वो बर्रा जो खुदा ने तैयार किया हुआ था, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, जो सलीब पर था, जिसके ऊपर कतबा लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है, जिसे यूहन्ना आरफ कहता है कि ये वो बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो कुर्बान हो गया। और उसकी मसलूबियत से मेरे और आपके गुनाह जो है वो सलीब पर उसने जो है वो अपने ऊपर उठा लिए, ताकि यीशु मसीह की वजह से मैं, आप और उम्मत मसीहा, बल्कि वो लोग भी जो आज भी उस पर ईमान लाए, उनके गुनाहों को भी बख्श देता है। क्योंकि जब ये कलमा बोला तो फिर 3 काम किए। पहला काम, गुनाह को शिकस्त दी, क्योंकि उसने शरीयत को पूरा किया। कोई भी नबी, कोई भी आदमी जो इस जमीन पर था यीशु मसीह से पहले वो शरीयत को पूरा नहीं कर सका। शरीयत को पूरा करके गुनाह के दबदबे को हमेशा के लिए कम कर दिया। फिर उसके बाद उसने जो शैतान को, जो उसके करीब था, वो उसको आजमाता रहा। उसको शैतान ये चाहता था कि यीशु मसीह ये काम कभी भी ना कर सके, उसको भी शिकस्त दी। और तीसरा दुश्मन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, मौत। मौत का लफ्ज़ी मतलब है जुदाई, जो खुदा से आगे अदम में हुई थी। आदम को निकाल दिया गया था, उस जुदाई को खत्म किया। मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाई और उसकी खाली कब्र आज भी मुंह बोलता सबूत है कि वो जिंदा है। खुदा ने तो अनुपलियां आपको देते हैं, लिसिया 2 हाथ देते हैं। पहला सजाद खुदाओ, सजाद खुदाओ, फिर कबात बजाओ तो जोरदार तालियां खुदा ने यीशु मसीह के नाम में। बैठना पादरी साहब ने, पादरी साहब दा इस चर्च सारी कलीसिया इन्हां बच्चियां दा, भैणां दा, बुजुर्गां दा, मेरे मोहतरम जिन्ने भी इत्थे तशरीफ फरमा ने, यीशु मसीह दा जिंदा कलाम क्योंकि हड्डियां ते गुर्दियां चों गुजर जांदा है। अज दा दिन साडे लई गम दा दिन नहीं है, अज दा दिन उम्मत मसीहा लई खुशी दा दिन है, क्योंकि साडे नजात दहिंदा ने साडे वास्ते सलीब ते मर के साडे गुनाहां नूं, साडीआं बदियां नूं, साडी बदकारियां नूं सलीब ते जाके अपने ऊपर ले लिया और हमेशा लई कबर दा, शैतान दा मुंह बंद कर दिता। और अगे मुकाशफे की किताब पढ़ी तो लिखिया कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। और यीशु मसीह ने, मैं चंद पॉइंट आपके सामने रख के फिर इस कलमे को क्लोज करूंगा। तमाम वादे और नबूवतें जो मसीह के हक में थी वो पूरी, कुर्बानियों का सिलसिला मौकूफ कर दिया गया, क्योंकि एक ही कामिल कुर्बानी यीशु मसीह ने गुजरान दी बाप के हुजूर। शरीयत के हुक्मों की तामील
करते हुए शरीयत को पूरा कर दिया। खुदा के इंसाफ के तकाजे पूरे किए, क्योंकि बगैर खून बहाए हुए मुआफ़ी नहीं। यीशु मसीह ने अपना पाक और बेअब खून बहाकर इस तकाजे को भी पूरा कर दिया। गुनाह, शैतान और मौत पर फतेह पाई और फतेहमंदी का नारा मारा। इसके बाद अहद की तौसीक का मतलब होता है किसी भी अहद को पूरा करना। खुदा बाप ने जो अहद किया था वो अहद यीशु मसीह ने पूरा किया, और इंग्लिश में कहते हैं इट इज फिनिश्ड, खत्म कर दिया, तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। और इस कलमे को शेयर करते हुए मैं दोबारा खुदा से ये अपील करता हूँ कि मेरे ये कहे हुए अल्फाज, उसका कलाम जो मुझे बख्शा था, ये आप तक पहुँचा है। खुदा इसे कबूल करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हालेलुया। आइए पहचान के लिए तमाम लोगों के लिए जिन्होंने खुदा की आवाज़ को बयान किया है, जोरदार तालियां बजाइए। आइए मेरे साथ हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे 7वां कलमा, लूका की मार्फत लिखी है इंजील, और उसका बाब नंबर 23 आयत नंबर 46 में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। 7वां कलमा जो है, यीशु ने इससे पहले कि अपनी रूह जो है वो खुदा बाप को देता, और जिस तरह छठे कलमा में हमें भाई बता रहे थे खुदा के कलाम में से कि उसने छठा कलमा ये बोला, इट इज फिनिश्ड, के तमाम हुआ। आप किसी कुर्बानी की, आप किसी और चीज की जरूरत ना रही जो गुनाह को मिटा सके, बल्कि यीशु ने सब माफ कर दिया। और माफ करने के बाद कलाम में लिखा है कि उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। यहाँ पर भी यीशु ने अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी को साबित किया, और उसने अपना आप जो है वो खुदा बाप के सुपुर्द कर दिया। आमीन। कलाम में लिखा है, मुकाशफा की किताब में यीशु ने कहा कि जान देने तक वफादार रह तो जिंदगी का ताज मैं तुझे दूंगा। आमीन। क्या दे? जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। जब सलीबी जंगें हो रही थी तो बहुत सारे खुदा के खादमी, जिनमें पास्टर्स और काहिन शामिल थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने जब उन पर हमला हुआ सलीबी जंगों में, तो उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया और कहा कि वक्ती तौर पर तो हम इनकार कर देंगे और उसके बाद फिर मसीह को कबूल कर लेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। यीशु ने अपनी जान भी दे दी, और यहाँ तक जब उसके बदन में से रूह निकलनी थी तो उसने ये कहकर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर उसने दम दे दिया। आमीन। तो हम चाहे जिंदा हों या हम मरने के करीब हों, तो हमने यीशु के साथ वफादारी दिखाना है। आमीन। और कलाम में इसमें आयत को पढ़ूंगा, आयत नंबर 44 से लेकर आयत नंबर 39 तक। कलाम में लिखा, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। आयत नंबर 45 में लिखा है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आयत नंबर 47 में लिखा, ये माजरा देखकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। कौन था? हालेलुया।
और जितने लोग इस नजारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और वहां पर कलाम में लिखा कि ये माजरा, ये नजारा देखने आए थे। बहुत सारे लोग आज भी जब मोहल्ला में लड़ाई होती है या दो बहनें लड़ती हैं या भाई, तो पूरा मोहल्ला क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है या कोई हादसा होता है। इसी तरह एक बड़ा हादसा जो था, जो रुई जमीन पर रुनमा हो रहा था, कलाम लिखा है, और जितने लोग इस नजारा को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो दलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने खुदा से वफादारी की, उसने उसके हुक्म को माना, उस नबूवत को पूरा किया और वो हमारी खातिर मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करेंगे, खुदा यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे। कलाम में लिखा कि कोई किसी की खातिर जान नहीं देता, यीशु ने कहा, बल्कि मैं वो हूँ जो अपने लोगों के लिए जान देता हूँ। उसने कहा कि मैं अपनी